میں نے راگنی سے کہا، کرشنا جی آپ سے کافی ناراض نظر آتے ہیں۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، میری طرف سے غصے میں جل کر کوئلہ ہو جائے، دماغ خراب ہو گیا ہے بڈھے کا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ایسی باتیں نہ کریں، وہ بزرگ کی حیثیت سے بھی ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور دھیمے لیکن زہریلے لہجے میں کہا، یہی تو مسئلہ ہے، کرشنا جی کو اپنی بزرگی کا بالکل احساس نہیں۔ میں نے اشاروں میں کئی مرتبہ بتایا کہ میں انہیں اپنے بھائی سے ان کے تعلق کے علاوہ ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بھگوان جانے میری توجہ سے کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے کہ مجھے بڈھا کیوں کہا۔ میں اس تمام معاملے کے پس منظر سے بخوبی واقف تھا، اس لیے صورتحال سے پوری طرح لطف اندوز ہوا۔ البتہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ راگنی نے کرشنا جی کی بے تابی کو ہوا دینے کے لیے عارضی طور پر کنارہ کشی اختیار کی ہے یا وہ واقعی اس سے پیچھا چھڑانے کا تہیہ کر چکی ہے۔ مجھے پس منظر میں پنہاں یہ خدشہ بھی بے چین کیے دے رہا تھا کہ کہیں وہ کومل کی قیاس آرائی کے مطابق واقعی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ میں نے اسے جانچنے کے لیے کہا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کرشنا جی جیسی بلند مرتبہ شخصیت ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی ہے، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ آپ کے جوان بھائی کی ڈیڈ باڈی ہمارے ساتھ۔ یہ سن کر اسے اعصابی جھٹکا لگا اور وہ اچانک گلوگیر لہجے میں اپنے بھائی کی دردناک موت کو یاد کر کے افسوس کا اظہار کرنے لگی اور پھر باقاعدہ رونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ اسے پیچھے چھڑانے کے لیے مجھے یہ موقع مناسب لگا۔ میں کافی کا کپ رکھنے کے بہانے اپنی نشست سے اٹھا اور پھر سیدھا کرشنا جی کے پاس جا پہنچا، جو حیرانی سے صورتحال میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے کرشنا جی کے پاس پہنچ کر دھیمے لہجے میں کہا، راگنی جی اپنے بھائی کی موت کا سوچ کر بہت دکھی ہیں کرشنا جی، آپ دلجوئی کریں گے تو ان کا من بہل جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ناراضی بھلا کر ان کے پاس جائیے۔ کرشنا مینن تو شاید موقع ہی ڈھونڈ رہا تھا، میری طرف سے دعوت ملتے ہی جھٹ سے اٹھ کر اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ نخرے دکھانے کے بعد راگنی ایک بار پھر اس سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، میں فی الحال اس نئے بکھیڑے میں الجھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، خصوصاً ایسی صورتحال میں کہ میں دلی پہنچنے کے بعد منوہر کو منظر-عام سے غائب کر کے اس کی جگہ روہت کو مرکزی کردار میں متحرک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دیوداس ناول اٹھاتے ہوئے ایس پی انجینئر کا جائزہ لیا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ وہ باقی تمام سفر کے دوران بے خبر سویا رہا۔ اس دوران میں نے دیوداس کا خاصا بڑا حصہ پڑھ لیا۔ ڈیکوٹا طیارہ دلی ایئرپورٹ پر اترنے کی تیاری کر رہا تھا تو طیارے کے عملے نے سب سواریوں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی درخواست کی۔ میں نے دھیرے سے جھنجھوڑ کر ایس پی انجینئر کو جگایا۔ اس کے ہوش و حواس بحال ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں نے اسے سیٹ بیلٹ باندھنے کو کہا اور پھر دھیمے لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، دلی پہنچنے کے بعد میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا مسٹر ایس پی، لیکن ہمارے درمیان جو معاملات طے پا چکے ہیں ان کو میری ہدایت کے عین مطابق تم نے آگے بڑھانا ہے۔ کل رات تم ذرا جلدی ٹیلر ماسٹر او پی ویش جی کی پارٹی میں پہنچو گے اور وہاں جرمن انجینئر کرٹ ٹینک کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ محفل جماؤ گے۔ اسی دوران میں میرا ایک ساتھی روہت وہاں آ کر تم سے ملے گا۔ تم اسے اپنے عزیز دوست کی حیثیت سے کرٹ ٹینک سے متعارف کرواؤ گے اور پوری کوشش کرو گے ان دونوں کے درمیان دوستی نہیں تو کم از کم بے تکلفی ضرور ہو جائے۔ ایس پی میری باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی، کہا ہو سکتا ہے میری تم سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں، لیکن آج کے بعد تمہارا پورا معاملہ روہت ہی ہینڈل کرے گا۔ وہ تمہارے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے جو مجھے معلوم ہے، بلکہ شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ یوں سمجھو کہ سری نگر میں تمہارا سارا معاملہ وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ ایس پی انجینئر کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمودار ہوئیں، پھر اس نے شانے اچکا کر اندیشوں کو پرے چھٹک دیا۔ تاہم میں نے اسے آخری اعصابی جھٹکا دینا ضروری سمجھا۔ میں نے اس کی طرف جھک کر دھیمے لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا، معاملہ اب چونکہ میرے ہاتھ سے نکل کر میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے مسٹر ایس پی، اس لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ حد درجے احتیاط کا مظاہرہ کرو۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھی اپنی تربیت کے مطابق حد درجے شکی مزاج اور سخت گیر ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سچائی اور نیک نیتی پر اتنی آسانی سے اعتبار نہ کریں۔ ایسے میں تمہاری طرف سے کسی شک میں مبتلا ہونے پر کوئی سخت رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی خطرے کا احساس ہونے پر تباہ کن رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ میں نے ایس پی کے چہرے پر تشویش اور خوف کے ملے جلے تاثرات دیکھے تو گرم فولاد پر فیصلہ کن ضرب لگائی۔ کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب کی تربیت کا حصہ ہے کہ اپنی رازداری یا اصل شناخت افشا ہونے کا خطرہ محسوس ہو تو خطرے کا سبب بننے والے فرد یا افراد کو بے دھڑک نیست و نابود کر دو۔ اس طیارے میں جس شخص کی لاش جا رہی ہے وہ بھی ایسی کارروائی کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے۔
वो इतनी जल्दी कृष्णा और तुमसे मेरी बेतकल्लुफी होने पर मेरे बारे में शक व शुबे का शिकार हो गया था। उसने मेरी नक्लो हरकत की सुनगुन लेने के लिए मेरा ताक़ुब करने की कोशिश की। नतीजे में मेरे साथियों ने उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया। वो भी इस तरह के हर किसी को उसकी मौत हादसाती होने का यकीन हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या तुम्हारे अपनों को ऐसे किसी अंजाम से दो चार होना पड़े, क्योंकि मेरी राय में तुम बुनियादी तौर पर एक नफीस तबा इंसान हो। तुम्हें कोई ज़िक्र या दुख पहुंचा तो मुझे अफसोस होगा। मेरे तवील लेक्चर ने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक असर किया। मैंने उसके चेहरे की रंगत में जर्दी घुलते देखी। उसने बमुश्किल थूक निगल कर खुश्क हलक गीला किया और फिर अस्बात में सर हिलाया। इस दौरान मैं डिकोटा तैयारा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सी करते हुए एक अलग थलग गोशे में पहुंच कर रुक गया था। उसके साथ ही वजारत दिफा के सरकारी अमले और फौजियों ने डिकोटा तैयारे को घेरे में ले लिया। वहां फौजी अस्पताल की एक मखसूस गाड़ी देखकर मुझे पता चला कि लक्ष्मण की लाश हमरा होने की इत्तला भी पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है। बाकी लोगों की तरह मैंने भी अपना सामान समेटा और रुखसत होने को तैयार हो गया। तभी कृष्णा जी ने मुझे तलब किया। वो और एसपीजी इंडियन एयरफोर्स की एक जीप में सवार थे। बोले, आपका क्या प्रोग्राम है मनोहर जी? आप जहाँ कहेंगे महकमे की गाड़ी आपको छोड़ाएगी। मैंने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी कृष्णा जी, मुझे चांदनी चौक के पास छुड़वा दीजिए। वहाँ मेरे मामूजाद भाई रहते हैं। आज रात वहाँ रुककर सुबह रोहतक चला जाऊंगा। कृष्णा ने पास खड़े अपने एक मातहत को मेरे हुक्म की तामील करने का इशारा करते हुए मुझे कहा, ठीक है तो फिर तय रहा। तुम अगले इतवार दोपहर का खाना मेरे साथ खाओगे और हम बायोग्राफी पर काम शुरू करेंगे। तब तक मैं अपने पुराने इंटरव्यूज और तकरीरें रिकॉर्ड से निकलवा लूंगा। मैंने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। कहा, आप फिक्र न करें, श्रीनगर से पश्मीना शॉलों की खेप पहुंच गई तो मैं इतवार से पहले ही दिल्ली आ जाऊंगा। अपने एसपीजी से भी मुलाकातें करनी है मुझे। उनसे रुखसत होकर मैं कृष्णा जी के मुकर्रर करदा अहलकार की मायत में एक खटारा सी गाड़ी में बैठकर चांदनी चौक की तरफ चल दिया। मैं एहतियातन रास्ते में जायजा लेता रहा कि कोई गाड़ी हमारा ताकुब तो नहीं कर रही। ताहम कोशिश के बावजूद ऐसी कोई गाड़ी मेरी नजरों में ना आ सकी। जामे मस्जिद के पास उतरने के बाद मैंने यहाँ तक पहुँचने वाले अहलकार को शुक्रिया के साथ रुखसत कर दिया। मैं चांदनी चौक की पुरपेच गलियों में कुछ देर चकराता रहा और फिर पूरी तरह मुतमईन होने के बाद एक साइकिल रिक्शा करके फिल्मिस्तान सिनेमा के करीब वाक़े एक इंतहाई मसरूफ और सस्ते होटल में सस्ता से कमरा हासिल किया। मैंने 3 दिन का किराया एडवांस जमा करवा दिया था ताकि किसी भी वक्त बिला रोक टोक बिला ताखीर होटल से रवाना हो सकूं। होटल की इंतजामिया की तरफ से मुझे यकीन दिलाया गया था कि मेरा सामान कमरे में बिल्कुल महफूज है। ताहम मैं अपनी तहवील में मौजूद हसास अशिया के हवाले से उनकी बात पर अंधा एतबार नहीं कर सकता था। लिहाजा मैं शाम से जरा पहले चंद मिनट के लिए होटल से बाहर निकला और एक छोटा सा हैंड बैग खरीद कर वापस कमरे में आ गया। मैंने तमाम तस्वीरें, डायरी और फिल्म रोल दोनों रेडियो ट्रांसमीटर्स के साथ उस हैंड बैग में रखे और एक बार फिर होटल से निकल आया। कमरे की चाबी मेरे पास ही थी, लेकिन जाहिर है मुझे अपने बाकी सामान की ज्यादा फिक्र नहीं थी। एक साइकिल रिक्शे के जरिए मैं एक बार फिर चांदनी चौक पहुंच गया और थोड़ी बहुत तगोदौ के बाद अपनी जरूरत की अशिया फरोख्त करने वाली दुकान तलाश करने में कामयाब हो गया। 2 अलग दुकानों से खरीदारी करने के बाद मैं अपने होटल के कमरे में वापस आ गया। अगले 2 घंटे मैंने होटल में ही गुजारे। इस दौरान मैंने अपने चेहरे पर मुनासिब तब्दीलियां करके एक नया भेस अपना लिया। मनोहर अब अमलन हमेशा के लिए मादूम हो चुका था। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के किसी साइड हीरो जैसी शक्ल सूरत और हुलिये के साथ अपने सामान समेत होटल के इस्तकबालिये पर पहुंचा और अपने कमरे का नंबर बताते हुए मुत्तला किया कि मैं रुखसत हो रहा हूँ, लिहाजा मेरा हिसाब चुकता कर दिया जाए। इस्तकबालिया क्लर्क ने बिला तारुज अस्बात में सर हिलाया और एक खाता खोलकर मेरे मुंतरजात का जायजा लेने लगा। उस होटल के इंतखाब की बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ कमरों की भारी तादाद की वजह से मेहमानों की रेल पेल इतनी ज्यादा होती थी कि होटल के अमले के लिए सबकी शक्लें और कवायफ याद रखना बहुत मुश्किल था। वैसे भी वहाँ किसको पड़ी थी कि इतनी जहमत करता। असल तवज्जो सिर्फ 2 चीजों पर दी जाती थी, होटल का किराया और चाबी। वैसे भी मैंने एहतियातन शक्ल और हुलिया बदलने से पहले इत्मीनान कर लिया था कि होटल का सुबह की शिफ्ट का अमला रुखसत हो चुका है और रात की शिफ्ट वाले मुझे शक्ल से नहीं पहचानते। कमरे के किराए का बकाया वसूल करके मैं होटल से निकल आया। शाम गहरी होने लगी थी, ताहम मेरा अंदाजा था कि चोर बाजार में अब भी कुछ दुकानें खुली होंगी। ऑटो ने मुझे बाजार की पहली अंदरूनी गली में उतारा तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैं 1 घंटे में अपने पास मौजूद पश्मीना शॉलों, दोनों कैमरों और इजाफी सफरी बैग से जान छुड़ा चुका था। उन दोनों दुकानदारों ने यकीनन यही कयास किया होगा कि मैं सब चीजें कहीं से चुरा कर लाया हूँ, वरना बिल्कुल इन नई अशिया के इतने औने पौने दाम क्यों कबूल करता। बहरहाल मुझे उसकी क्या परवाह हो सकती थी। अब मैं खासी हद तक फालतू बोझ से आजाद हो चुका था।
मेरे पास सिर्फ एक छोटा सफरी बैग था जिसमें मेरे कपड़े थे। हैंड बैग भी मैंने उसी में रख लिया था। मेरी अगली मंजिल सेठ जगदीश्वर प्रसाद का गैराज था। मेरा अंदाजा था कि सेठ का मुंशी प्रेमनाथ उस वक्त वहीं होगा और मेरा काम बन जाएगा। मैं सफरी बैग कांधे से लटकाए गैराज के अहाते में दाखिल हुआ तो प्रेमनाथ मुझे दूर से कुर्सी पर पिसरा नजर आया। मैं देख चुका था कि अहाते में 2 टैक्सियां और 3 ऑटो मौजूद हैं। मुझे देखकर प्रेमनाथ सीधा होकर बैठ गया। मैंने दोनों हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, राम राम प्रेमनाथ जी। उसने उसी अंदाज में जवाब देते हुए सवालिया नजरों से मेरी आमद का सबब जानने की कोशिश की। मैंने खुशामदी लहजे में कहा, मेरा नाम किशोर लाल है, भिवानी का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे एक शुभ चिंतित रोहित ने आपके पास भेजा है। मुझे भाड़े पर ऑटो चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने गौर से मुझे देखा और फिर खोजने वाले लहजे में पूछा, तुम किस रोहित की बात कर रहे हो? मैंने कहा, वो जी हुमायूं नगर वाले रोहित, भाड़े पर कुछ दिन तुम्हारा ऑटो चलाते रहे हैं। अब तो खैर उनकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। उसने कुछ बेजारी से कहा, अच्छा। उसने तुम्हें बताया है कि ऑटो के लिए गारंटी का 500 रुपया जमा करवाना पड़ेगा और भाड़ा 70 रुपया। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, रोहित जी ने बता दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि प्रेमनाथ जी बहुत कोमल हृदय वाले पुरुष हैं। अगर विनती करोगे तो कम गारंटी मनी पर मान जाएंगे। उसने कदरे नरम पड़ते हुए पूछा, ये बताओ किशोर, तुम कितना रुपया जमा करवा सकते हो? मैंने जल्दी से कहा, पूरा 200 रुपया। ये भी रोहित जी ने मुझे उधार दिया है। मैं तो खाली हाथ भिवानी से आया हूँ। उसने कहा, 200 तो बहुत कम है, सेठ बकबक करेगा। फिर उसने गौर से मुझे देखा, बोला, ये बताओ तुम्हें ऑटो चलाना आता है ना? मैंने जोश से इस बात में गर्दन हिलाई, बोला, हाँ जी, मैं तो टैक्सी भी चला लेता हूँ, पहले भी रोहतक में चलाता रहा हूँ, तुम टेस्ट ले लो। उसने मुतमईन लहजे में कहा, चलो ठीक है, तुम सुबह आकर ऑटो ले जाना, मैं पर्ची लिख कर देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं प्रेमनाथ जी, मुझे रात को गाड़ी चलाने में मजा आता है, बक बक ना झक। तुम मुझे अभी ऑटो दे दो ताकि खर्चे पानी का तो इंतजाम हो जाए। मैं हर 3 दिन के बाद भाड़ा जमा करवाता रहूंगा। उसने कहा, ठीक है, परंतु पहले 200 रुपया इधर निकाल कर रखो, मैं तुम्हारा खाता खोलता है। लगभग निस्फ घंटे के बाद मैं एक लगभग नया ऑटो लिए दिल्ली की सड़कों पर रवा दवा था। मेरा सफरी बैग पिछली सीट के नीचे महफूज था। मैंने सबसे पहले एक दुकान से एक छोटा सा चाकू खरीदा और फिर मजदूरी पर लग गया। मैंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से छोटे बड़े फासलों की कई सवारियां उठाई, हत्ता के रात गहरी होने लगी। बिलाखिर मैंने ऑटो का मीटर बंद किया और मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं अख्तर खान साहब के बंगले के सामने से गुजरा तो वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। सामने वाले बंगले में उनकी निगरानी पर मामूर महकमा खुफिया के अहलकार अगर मुस्तैद भी थे तो मुझे उनकी मौजूदगी के आसार नजर न आए। मैं अपना ऑटो सीधा निकालता चला गया और इलाके के देर तक चहल पहल वाले बाजार में पहुंच गया। मुझे अपने पहले से बिरते हुए ठिकाने यानी बंद ऑटो वर्कशॉप के आसपास गाड़ियों के दरमियान ऑटो छुपाने में कोई मुश्किल पेश न आई। मैंने ऑटो की अकबी नशिस्त के नीचे से अपना सफरी बैग बरामद किया और उसमें से हैंड बैग निकाल कर उसे वापस उसकी जगह पर रखा और नशिस्त को पहले की तरह बंद कर दिया। खान साहब के बंगले के अकब वाली छोटी सड़क पर हस्बे मामूल हु का आलम था। मैं अपने साबिका तरीक़ाकार के मुताबिक टहलने के अंदाज में नीम तारीख सड़क के आखिरी मोड़ तक गया और फिर वापस चल पड़ा। इस दौरान मैं गहरी नजरों से आसपास का जायजा ले रहा था। मुझे बज़ाहिर कोई खतरे वाली बात नजर न आई। सामने वाली बंगलों की कतार के अकबी हिस्सों में इक्का दुक्का बल्ब जरूर रोशन थे, ताहम वहाँ कोई जीरूह दिखाई न दिया। बिजली के खंभों का दरमियानी फासला इतना ज्यादा था कि उन पर नस्ब कुमकुमे तारीकी को शिकस्त देने में कतन नाकाम थे। खान साहब के बंगले के अकबी फाटक के करीब पहुंचकर मैंने आखिरी बार अच्छी तरह गिरदो निवाह का जायजा लेकर अपनी तरफ से इत्मीनान कर लिया कि मैं किसी निगरान आंखों की जद में नहीं हूँ। उसके बाद मुझे फाटक फलांग कर अंदर कूदने में कोई मुश्किल पेश न आई। मुझे एहसास था कि अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पहले के बरक्स ड्राइवर के भेस में खान साहब की जासूसी पर मामूर अर्जुन इस मर्तबा ख्वाबावर दवा के ज़ेरे असर मदहोश नहीं होगा। मुझे उसकी नजरों में आने से बचने के लिए बंगले के पहलू वाले दरवाजे की बजाय सिर्फ अकबी दरवाजे से अंदर घुसना था। बंगले के अकबी लॉन में धुंधली तारीकी का राज था, ताहम वो पहले की निस्बत साफ सुथरा और छाड़ छनकार से पाक दिखाई दे रहा था। पहले के बरक्स झींगरों का राग भी सुनाई न दिया। मैं बेआवाज कदमों से अकबी बरामदे की तरफ बढ़ा। वहाँ निस्बतन गहरी तारीकी ने मेरा इस्तकबाल किया, ताहम मैं कदम बकदम आगे बढ़ते और वहाँ बिछी कुर्सियों और मेज से खुद को बचाते हुए अकबी दरवाजे तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इस दौरान में इर्द गिर्द छाए सन्नाटे की दबीज चादर में कोई छेद नहीं पड़ा था। चाकू की मदद से अकबी दरवाजे की चटखनी खोलने में मुझे जरा भी देर न लगी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने मौजूद स्टोर रूम में एक कम ताकत का कुमकुमा रोशनी बखेर कर अपना इस्तकबाल करता नजर आया।
मैंने अपने अकब में दरवाजा बंद किया और फिर स्टोर रूम के अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और चाकू के दस्ते से दस्तक दी। मैंने ज़रब की शिद्दत काफी कम रखी थी, उसके बावजूद सन्नाटे में खटखटाने की आवाज काफी बुलंद महसूस हुई। मैंने लगभग आधे मिनट इंतजार किया। कोई रद्दमल जाहिर न होने पर मैंने एक बार फिर हल्की सी दस्तक दी। इस मर्तबा मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। दरवाजा खुलते ही मुझे अपने खां साहब और उनकी बेगम अपने सामने खड़े दिखाई दिए। वो दोनों यकीनन अभी नींद से बेदार हुए थे, तहम पूरी तरह चाको चौबंद दिखाई दे रहे थे। मैं उनके चेहरों पर मखसूस गर्म जोश मुस्कुराहट देखने का मुंतजिर था, लेकिन वो दोनों मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही बुरी तरह चौंके। खां साहब मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, खां साहब के चेहरे के तासुरात तेजी से तब्दील हुए और तशवीश और तजस्सुस की जगह शफकत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात ने ले ली। उन्होंने जोर का कहकहा लगाया और खुशदिली से कहा, कमाल है, मेरा भाई अपनी हुनरमंदी से मुझे एक बार फिर बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। खूब, बहुत खूब। उसके साथ ही उन्होंने बेसाखियां बगलों में दबाते हुए बाहें खोलकर गले लगने का इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर गर्म जोशी से उनसे मुआनिका किया। उनकी माजूरी के एहसास से मेरा दिल दुख से भर गया, लेकिन साथ ही गहरा इत्मीनान भी महसूस हुआ। ये कोई जाती दुश्मनी वाला मामला नहीं है, लेकिन मैंने लक्ष्मण को जहन्नम रसीद करके एक तरह से खां साहब से ज्यादती का इंतकाम ले लिया है। खानम ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने हैरत से भरपूर लहजे में पूछा, ये सब क्या है खां साहब, ये कौन है? खां साहब ने फौरी जवाब देने की बजाय अपनी बेगम की हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, क्या जुल्म करती हैं खानम, इतने दिन बाद मेरा लाडला बरादर निस्बती मेरे घर आया है और आप इतने मुखासमाना अंदाज में उसका इस्तकबाल कर रही हैं। कैसी पख्तून हैं आप? खानम ने अपने शौहर की बात तवज्जो से सुनी। इस दौरान वो मुझे गौर से देख रही हैं, ताहम वो खां साहब के अल्फाज का तज्जिया करने के बाद ही मुझे पहचान सकी। उनकी आंखों में मौजूद हैरत की जगह शिनासाई ने ले ली। खां साहब ने उनकी हालत देखकर एक बार फिर कहकहा लगाया और कहा, जी हाँ खानम, ये अपने जमाल भाई ही हैं जो आजकल किसी काले कलोटे मद्रासी के रूप में हमसे मिलने आए हैं। खानम ने भी खंदा पेशानी से मेरा खैर मकदम किया और हम सब नशिस्त गाह में आ गए। इससे पहले कि हम तीनों फर्शी नशिस्त पर बैठते, मैंने खानम को कहा, नहीं खानम, अभी आप जाकर मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, उसके बाद आप हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकती हैं। खानम से ज्यादा खां साहब ने मेरे इसरार पर हैरत का इजहार किया। खैरियत तो है भाई? क्या खानम से छुपकर कोई खास बात करने आए हो? लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे श्रीनगर मिशन का क्या बना? मैंने खानम को जाते देखकर इत्मीनान का सांस लिया और कहा, यही सब कुछ बताने के लिए यहाँ आया हूँ खां साहब। यूं समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी इस्तिताअत से बड़ी कामयाबियों से हमें नवाजा है और मैं अपने मुल्क की सलामती के हवाले से बहुत अहम मालूमात हासिल करने में कामयाब रहा। मेरी बात सुनकर खां साहब की आंखें खुशी से जगमगा उठी। उन्होंने हिजान आमेज लहजे में कहा, मुझे तुमसे ऐसे ही कारनामे की उम्मीद थी भाई, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने खानम को क्यों चलता किया? मैंने जवाब देने के बजाय अपने हैंडबैग में से पोलराइड तस्वीरों वाला लिफाफा निकालकर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मेरे खामोश रहने पर उन्होंने लिफाफे में 2 उंगलियां डालकर तस्वीरें निकाली। पहली तस्वीर पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो हैरान नजरों से तस्वीर देखते रहे और फिर बिलाखिर उन्होंने तस्वीर का मरकजी किरदार यानी वर्दी से महरूम एसपी इंजीनियर को पहचान लिया। उसके साथ ही उन्हें गोया बिजली का जोरदार झटका लगा और वो अपनी जगह से उछल पड़े। उन्होंने मुर्तइश लहजे में कहा, ये तो एयर मार्शल एसपी इंजीनियर है। मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल वही है, बाकी तस्वीरें भी एक नजर देख लें। मैंने इसीलिए बदतहजीबी का मुजाहरा करते हुए खानम को बावर्ची खाने में भेजा। उनके सामने ये गलीज मनाजिर मैं कैसे पेश कर सकता था? खां साहब ने खोए खोए लहजे में कहा, तुम्हारे इसरार का मतलब अब मेरी समझ में आया, लेकिन एसपी के साथ गंद खाने में मसरूफ ये औरत कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो इसे मैं अपनी सबसे कारआमद एजेंट करार दूंगा। ये लक्ष्मण की बहन रागनी है और ये जगह श्रीनगर के ग्रैंड पैलेस होटल के VIP विंग का कमरा है। ये सुनकर उसने सताइश और हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ मुझे देखा। बोला, यार ये सब तुमने कैसे कर लिया? तुम कमाल के कारनामे तो सरंजाम देते ही रहते हो, लेकिन ये तो जादू का करिश्मा लगता है, इतनी वाज़ेह तस्वीर। मैंने उनकी बात पूरी न होने दी और कहा, खां साहब, इससे पहले कि खानम वापस लौट आए और हमें इस शर्मनाक मामले पर अपनी गुफ्तगू दरमियान में रोकनी पड़े, मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। यूं समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम पर मेरे लिए आसानियां पैदा करता गया और मैं ये सब कुछ करने में कामयाब हो गया। अगले आधे पौने घंटे तक मैं मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में श्रीनगर में रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात खां साहब के गोशगुजार करता रहा।